Today we are going to study uh, that how to apply cell names or the range of cells a particular name, how to give names. So as you can see here, this is your Excel sheet and suppose I click on this. The address of this cell is D2 and it is mentioned here, right? वो अलग से यहाँ clearly दिखाई दे रहा है कि the address of this cell is D2. In the same way, this is F6, this is C3 and so on. So these are cell names. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? Cell names और cell addresses. I want कि यहाँ पे C3 ना आए, मेरे को खुद का एक नाम डिफाइन करना है. So I can do here is like name, okay, and father's name, मैंने यहाँ ले लिया मार्क्स, वो पे हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. फाइन. सो आई वांट कि भाई इनको हम B3 C3 के नाम से रिप्रेजेंट ना करके कुछ और नेम दे. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रीनेम इट. यू कैन सी हियर, मैंने क्या कर दिया, नेम को क्या कर दिया, इसको रीनेम कर दिया विद दी नेम. तो जब भी whenever I click on this, तो the address of this cell will be B3. एड्रेस तो वही रहेगा, बट द सेल नेम इज नेम. सेल का जो नाम हो गया वो क्या हो गया, नाम हो गया, नेम हो गया. हियर आई कैन राइट मार्क्स. ओके, इसका मैंने क्या डाल दिया, मार्क्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश. दिस इज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, मैंने ऐसे रैंडम नेम दे दिए जो मुझे अच्छे लगे. चेंज ही नहीं हुआ. नाउ इट इज डन. आई थिंक ये भी नहीं हुआ था. अरे म्यूट योरसेल्फ. नाउ इट इज डन. अब क्या हुआ, हमने हर एक सेल को एक खुद का नाम दे दिया एंड दैट विच इज फाइन. So we can say that we can give cell names easily. Second thing, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हिंदी के मार्क्स आएंगे, राइट? तो मैंने क्या किया, कुछ एरिया सेलेक्ट किया सपोज यहाँ तक, एंड देन इसको नाम दे दिया हिंदी मार्क्स. वन सेकेंड. Okay, I think we cannot give space, right? So this complete cell is now considered as marks of Hindi. मैं जरा फटाफट यहाँ तक नंबर्स डाल लेती हूँ. 1 2 3 कहाँ तक लिया था हमने. अरे यार, चलो ये यहाँ तक ले लेते हैं. एंड यहाँ हम राइटिंग हिंदी मार्क्स. ओके, नाउ दिस कंप्लीट एरिया विल बी, ओ यहाँ नहीं था. Then coming to this area, this is English marks and this is maths marks. Okay, now I'm entering some values here. Okay, now I'm going to print the sum. मैंने क्या select कर लिया पूरे एरिया को. As you can see here, no range is given. अब इस बार रेंज नहीं आई D4 से लेकर D12 तक. क्या कर दिया इसने, यहाँ पे दिखा दिया हिंदी मार्क्स एंड इट गिव द रिजल्ट.
तो जब हम सेल रेंज में एक नेम असाइन करते हैं तो दैट वुड बी हेल्पफुल इन while doing the formulas work. जब हम formulas और functions पे work करते हैं तब ये helpful होता है. अब here it is not showing your cell range. Here it is showing the range, yeah, the name of that cell range. Okay. In the same way, I am going to drag this and you can see. अच्छा अभी marks नहीं डाले हैं. Okay. So this is marks of English. But if I take this area, इतना area मैंने लिया इस बार. This time it is not showing marks of mathematics. Why? Because इस बारी हमने ये एक्स्ट्रा ले लिया and this is not in the naming. ये naming वाले में नहीं था. That is why इसने क्या किया, range दिखा दी. ठीक है. और इसलिए हम लिखेंगे sum, bracket open and then enter. Now it is showing match marks. So I think it is clear that why we give cell names or names to a range of cells. If any problem, you can ask. Okay, ma'am. If we write D77, so nothing will happen. The value will be repeated itself. Okay. Then we have next thing. ये चार्ट हम अभी नहीं कर रहे हैं. Now we are doing some formulas. अब एक काम कर लो, कॉपी पेन उठा लो फटाफट से अपने एंड जल्दी जल्दी फॉर्मुलेस कुछ रिवीजन कर लेते हैं. एक हमने पढ़ा हुआ है सम, वी ऑल नो. प्रोडक्ट एंड एवरेज क्या था टुडे. और these are the formulas which we will study today. Sum, product, average, min, max. Today date today. ये दो बार हो गया. एक और था, याद ही नहीं आ रहा. होगी. So these are some formulas which we are going to study. Sum हम सबको ही पता है कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है. But still we will study it again. Okay. Then we have, वैसे तो it is not in your syllabus, but it's still I am going to tell you, you should learn some syllabus. Okay. Sorry, some formulas. Then we have round और power लिख दिया मैंने, power and that's it. मैमी B8 पे क्या है? B8. This is a square root. The function name is square root. SQRT square root. So let's start with this. So let's say sum कर लेते हैं एक बारी फिर से. I am writing some values. First thing about the functions is that all the functions starts with equal to sign. This is the first rule, or I can say every formula in MS Excel starts with equal to sign. सारे के सारे formulas equal to sign से start होते हैं. How to identify that this is a function? Function always enclosed with brackets. हमेशा ब्रैकेट्स में होते हैं, वेयर एज फॉर्मूलाज कभी ब्रैकेट्स में नहीं होते हैं. इट इज आवर विश, वो हमारी चॉइस है, हम चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड. तो आई एम गोइंग टू शो यू लाइक इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस. वो
plus and plus enter. So what I have done here, I have applied a formula which is adding these 5 6 values. Okay, this is a formula. ये मैंने कोई फंक्शन यूज नहीं किया, मैंने मैनुअली किया कि भाई एक काम करो, सबको आप क्या कर दो, ऐड करना शुरू करो, राइट। और आई थिंक यू ऑल कैन सी कि हर एक का कलर भी अलग अलग है, D2 अलग ऑफ डिफरेंट कलर, D3 ऑफ डिफरेंट कलर, each and every cell is considered as individual और सबके अलग अलग कलर्स दे दिए हैं। now what if when I write a formula, the formula is equals to sum. First thing, that whether you write formula, sorry, function in capital letters or in small letters doesn't matter, उसको एक ही कंसिडर करेगा। आइडियली तो देयर इज अ लॉजिक टू क्लोज दिस, हमें ब्रैकेट क्लोज करना होता है, बट इफ वी आर नॉट क्लोजिंग इट तब भी फॉर्मूला रन हो जाता है, ठीक है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। So this is a function. Each and every function is always enclosed in brackets. और ये लास्ट वाला ब्रैकेट बंद करो या नहीं करो, इट इज कम्प्लीटली योर विश। बट अगर हम एग्जाम में करके आ रहे हैं तो हमें इसको शो करना है दैट इट इज क्लोज्ड। हम चाहे फंक्शन में कुछ भी करें, प्रैक्टिकली डजंट मैटर। ओके। सेकंड इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट is used to find the multiplication of two numbers. Let's say is equals to product bracket open, and I'm selecting these two numbers and then enter. So the answer is 42. So product is used to find out the multiplication of two numbers. Then we have average. Average क्या होता है भाई? The sum of all the numbers by total numbers, right? So Excel provide a feature find out the average. उसने एक already function बना के हमें दे दिया। The function is average, average bracket open and shift will okay. This is the average. Now I want you people to give me an answer how to find out the average without using any function. I want to find out an average without using any function. Who will tell how I can do that? Yeah, what formula I will write? कौन बताएगा? So if I want to write the formula, so what I can do is equals to either, तो I can either नहीं, but I have no choice. हम क्या करेंगे, पहले सम कर लेंगे और डायरेक्ट सम का फॉर्मूला भी लगा लेंगे। इट इज कम्प्लीटली योर विश। एंड वील डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है ये? 3 3 6। काउंट का फॉर्मूला लगा लो या फिर डायरेक्ट लिख दो एंड देन यू कैन राइट। ओके। और द अदर वे इज दिस इज जस्ट सम, ये सम था ना, और यहाँ मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू काउंट एंड आई एम टेकिंग दीज वैल्यूज एंड एंटर। ठीक है, अब हमें एवरेज निकालना है तो इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस। ये हर्षित की प्रॉब्लम क्या है? Okay, so these are the ways to find out the average of a particular number. Then we have min and max. We all know in a given range of cells, if I find out the maximum number or the minimum number, so we can. अच्छा, we did conditional formatting. I'll show you. अब देखो क्या होता है, हम सीख तो सब कुछ लेते हैं, but how to apply? First thing, apply कैसे करना है और कहाँ अप्लाई करना है ये मैटर करता है। आई एम गोइंग टू शो यू वन थिंग
दैट कहाँ आप उसको अप्लाई कर सकते हो और अपना दिमाग लगा सकते हो कि भाई हाँ ठीक है यहाँ ये चीजें अप्लाई होती है. एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन राइट नाउ, आई थिंक मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगी. और जरा यहाँ देखो, इन दिस शीट दिस इज अ क्लास 12 कॉमर्स रिजल्ट अभी बोर्ड वाला. ठीक है. एंड इन दिस व्हाट आई हैव डन, यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स हो रखे हैं. कलर तो नहीं किए मैंने, खुद ही हो रखे हैं. क्योंकि मैंने क्या लगाई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई, जिनके भी 90 से अबव मार्क्स है उनको अलग से हाईलाइट कर दो. तो learning is different, but applying that learning, that makes the practical life कि भाई सीख तो लिया, doesn't matter, सीख तो सब कुछ लेते हैं, बट करेक्ट टाइमिंग पर उसको अप्लाई करना मैटर करता है. ठीक है. आई हैव सीन पीपल, आता सब कुछ है बट करेंगे नहीं उसको, क्योंकि दिमाग में नहीं आता कि अरे हम ये भी तो कर सकते हैं. nobody does so. okay, so always apply things. जब आप कुछ सीख रहे हो तो उसको अप्लाई भी करना सीखो कि कहाँ उसको अप्लाई कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट वी हैव मिन एंड मैक्स. दिस आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू मिन एंड मैक्स क्या करता है, बिकॉज ये कोई नया नहीं है. देन वी हैव टुडे. टुडे इज अ फंक्शन which is used to display the current date. What is the date today? 14. So it will display 14/7/2020. ठीक है. So today is a function which is used to display the current date. Next is sqrt. Sqrt means Can we also change square. the format? Yeah. So you a हाँ we can. मैं बताती हूँ कैसे करते हैं. Square root. Okay. sqrt is square root. How to write is equals to sqrt bracket open and it is asking for a number. भाई एक नंबर डालो. मैंने नंबर डाल दिया 441 and then enter. So it has given me that the square root of 441 is 21. Okay. In the same way if I write, जिसका मुझे नहीं पता 400 ले लेते 401 ले लेते हैं. It has given me 20 point something something. Okay. So sqrt finding the maximum, oh sorry, square root of a number. Then we have date. अब इज इक्वल्स टू डेट क्या होता है, वो कोई डेट डिस्प्ले नहीं करता, ये डिस्प्ले करता है किसी भी टेक्स्ट को इन द फॉर्म ऑफ डेट. एज यू कैन सी इट इज आस्किंग ईयर, देन मंथ एंड देन डे. So I am writing year here 2019, month I am writing 3rd and day I am writing 7. Enter. तो उसने क्या किया, उसको डेट की फॉर्मेट में डिस्प्ले करा दिया. ओके. इस डेट में भी काफी सारी चीजें होती हैं. देन वी हैव मोड. मोड क्या करता है, कोई बताएगा मोड क्या करता है? The complete name of mod is modulus. Anybody who can tell what is modulus? नेगेटिव साइंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है मॉड्यूलस. Okay, in mathematics it is correct, but here it is not. Chalo. If I say 56 by 7, so what will be the answer? क्या आंसर आना चाहिए? 56 by 7? Of course, no doubt 8. Right. अब क्या होता है, दिस इज डिविजन, है ना. मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस फाइंड आउट द रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर आया. तो अब अगर मैं बोल रही हूँ 56 by 7, तो व्हाट विल बी द आंसर इफ आई एम यूजिंग मॉड? 0. एग्जैक्टली 0. राइट. तो हम क्या करते हैं इसमें, मॉड्यूलस हमेशा यूज होता है टू फाइंड आउट द रिमाइंडर आफ्टर डिविजन. जब हम डिविजन कर रहे होते हैं तो जो रिमाइंडर होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए we use a function that is known as mod. So I'm using it is equals to mod. It is about to over in 10 minutes. Bracket open, and now it is asking that what is the number and what is the divisor. So I am writing the number here. ये ले लेती हूँ 56, 7 and then close. इसने मुझे क्या दे दिया, रिमाइंडर 0. Here I'm writing 55 now.
and by 7. Now the mod is 6. तो रिमाइंडर क्या बचा होगा मेरे पास? 6 बचा होगा. ठीक है. mod is a very important function, बहुत काम आता है. अभी in class 10 तो नहीं आएगा, but in future if you do something regarding excel sheet तो it will definitely work. इतना कुछ है ना इस एक्सेल में सीखने के लिए, इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, मतलब यू कांट इवन इमेजिन आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं. बहुत सारी कंडीशंस वी कैन पुट, राइट. अभी आपका जो 10th आपके जो रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं उसमें ग्रेड्स आते हैं, राइट, कि आपके हिंदी में इतना स्कोर है एंड व्हाट इज द ग्रेड. दिस कैन आल्सो बी जनरेटेड बाय यूजिंग एक्सेल. एक्सेल इज सो एडवांस्ड. लर्न पढ़ने बैठ गए ना तो जिंदगी निकल जानी है और एक्सेल नहीं आना. बहुत कुछ है इसके अंदर. ठीक. देन वी हैव राउंड. राउंड इन मैथमेटिक्स वी स्टडीड कि क्या होता है ये. एक नंबर को राउंड ऑफ करके आपको दे देता है, राइट. तो लेट्स से आई एम यूजिंग हियर इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट ओपन एंड आई एम गिविंग अ नंबर. अब क्या बोलना है इसने, कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं बोल रही हूँ कि भाई 2 तक कर दूं एंड देन एंटर. उसने क्या किया, एक्चुअल नंबर क्या था 1254. पॉइंट के बाद उसने क्या कर दिया, राउंड ऑफ करके मुझे दे दिया 2 डिजिट तक नंबर. ठीक है. इफ आई से कि भाई मुझे 1 तक चाहिए तो उसने मुझे 1 तक दे दिया. ठीक है. तो राउंड ऑफ क्या करता है, जब डेसिमल वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट ओपन कॉमा, कहां तक करना है, वी आर टेकिंग इट टिल 2 एंटर. नाउ इट इज 16.17. ओके. तो राउंड ऑफ इसलिए वर्क आपके यूज में आता है. नेक्स्ट वी हैव पार. अब स्क्वायर रूट तो निकाल लिया, पार निकालने के लिए भी कुछ फंक्शन होना चाहिए. तो हियर आई एम यूजिंग पार इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन. नाउ इट इज आस्किंग टेल मी द नंबर एंड व्हाट इज द पार. तो नंबर इज दिस 6 की पावर 2 मैं दे रही हूँ एंड द आंसर इज 36. 6 से 36 ही होता है. ओके. और वी कैन गिव मैनुअली. The answer will be 343. Okay. Next we have exponent. So let's try what will happen here. Is equals to e x p bracket open. I'm giving you a number here. तो ये क्या करता है, ये आपको वैल्यू देता है exponent returns natural logarithm raised to the power of a number. Basically log value generate करके देता है. ठीक है. This generates a log value जो आपके मैथ्स में भी नहीं है. तो पहले मैथ्स में लॉग चैप्टर हुआ करता था, अब तो साइंस में है ही नहीं. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस. एक्सपोनेंट को छोड़ देते हैं. नाउ टेल मी, इतना किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ओके. सो इफ आई एम राइटिंग दिस इज द डे टुडे एंड आई वांट टू फॉर्मेट इट, तो कैसे कर सकते हो आप इसका? सिर्फ वैसे हम उसको फॉर्मेट वो तो हम फिर डेट से जाके कर सकते हैं. नंबर पे गए and here date is there, so this is how you can format. ठीक है. कुछ नहीं करना, सेल पे चले जाओ, go to this option numbers dialog box, this date is there, any format you are liking, जो भी अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, take this. okay. तो वो आपको इसी फॉर्मेट में दे देगा. ओके. देखो कभी कभी क्या होता है, हाँ एक फंक्शन रह गया बहुत इंपॉर्टेंट, int. Okay, this function returns the integer value. First of all, we should know that what is the integer. Integer means all the positive and negative whole numbers. Whole numbers पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
These are the whole numbers. It means positive as well as negative. 3 minutes we are having. Let's say क्या होता है, देखो जब आपका सीपीडी का टाइम, आप लोग सीपीडी स्टेटस पढ़ते हो तो आपके पास एक, हमारे पास एक शीट आती है, देन वी कैलकुलेट द टाइम ऑफ योर सीपीडी स्टेटस एंड देन गिव इट टू आवर एचओडी, कंसर्न एचओडी. तो क्या होता है, टाइम कुछ ऐसे लिखा होता है, लाइक मैं अगर बात करूं मनु का, तो इट इज 25 hours 45 minutes and then 12 seconds, something like that. Okay, now what I have to do, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी. ठीक है, अब आर को अलग निकालूं, मिनट्स को अलग निकालूं, सेकंड्स को अलग निकालूं, ये सब करना पड़ता है. तो हम क्या कर सकते हैं, या देयर इज नंबर 45.4525, आई वांट टू यूज दिस 45 ओनली, बट मुझे एक्चुअल वैल्यू को भी चेंज नहीं करना, लेकिन यूज सिर्फ 45 ही करना है. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज अ फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n and the number ब्रैकेट क्लोज. ये क्या हो गया, okay, so here it is, the integer value is here. Okay, so this is how you can find out the value. जरा इस पे ट्राई करके देखते हैं वर्क करता है नहीं करता, क्योंकि मैं इस काम को यूज नहीं करती हूँ बेसिकली. so it is not working because यहाँ पे कॉलम्स गिवन है ना, that is why. तो मे बी कुछ और फंक्शन यूज किया, मैं तो नहीं करती इसका. चलो, this is int is used to find out the integer value. तो चलो इसी तरीके से क्या फ्लोट भी होता है, is equals to float. float is not a function. Okay, int एक function है. Second thing about the today I am talking about, अगर आपको चाहिए मंथ, करंटली कौन सा मंथ चल रहा है, so what you can do is equals to month, how much time, 1 minute. मंथ के अंदर हमने क्या डाल दिया, टुडे, और टुडे को भी हमने क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया. तो प्रॉब्लम है, it has given me that it is a 7th month. Okay, so that's all for the day. Similarly अगर आपको डेट फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी डेट एंड देन ईयर, सॉरी ईयर फाइंड आउट करना है. so it is 2020 currently. Okay, that's it for the day. Rest we will do in the next turn. Time is also about to over. So goodbye everyone, take care. Bye. Bye.